السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 18 اگست 2023 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 30 محرم 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے جموں کشمیر کے بھٹنڈی علاقے میں آج جمعے کی صبح چھاپے مارے، تاہم اس بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ آیا یہ چھاپے اس رپورٹ کو درج کرنے کے وقت جاری تحقیقات کے سلسلے میں تھے۔ دراصل جموں کشمیر میں سوپور پولیس نے پاکستان میں مقیم ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے 2 OGWS یعنی اوور گراؤنڈ ورکرز کو گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد دہشت گردوں کے ساتھیوں کے قبضے سے کارتوس اور دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ سوپور پولیس نے آج جمعے کو بتایا کہ گرفتاریوں کے سلسلے میں FIR درج کی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری آج سے منی پور کے دورے پر ہیں۔ سیتارام یچوری اپنے آبائی مقام سے آج جمعے کی صبح منی پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ CPM کے جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری کی قیادت میں ایک 4 رکنی وفد 18 سے 20 اگست تک منی پور کے دورے پر رہے گا۔ اس موقع پر ہوائی اڈے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیتارام یچوری نے کہا کہ ہم منی پور کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے جا رہے ہیں اور انہیں بتانے جا رہے ہیں کہ ہندوستان آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کے وزیر اعلیٰ کو برطرف کر دیا جانا چاہیے۔ ہم امن بحال کرنے کے لیے جو بھی ضرورت ہوگا کریں گے۔ ریاست کی صورتحال خطرناک ہے اور ملک کے اتحاد کے لیے اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات حکومت سے کہا ہے کہ ریاستی حکومتوں کو قحطیوں کی معافی منظور کرنے کے معاملے میں امتیازی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور ہر قیدی کو اصلاح اور سماج میں دوبارہ شامل ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ گجرات حکومت نے بلقیس بانو کیس میں 11 قحطیوں کی قبل از وقت رہائی کے فیصلے کی مدافعت کی۔ گجرات حکومت کی جانب سے پیش ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SV راجو کا جواب دیتے ہوئے عدالت نے یہ موقف اختیار کیا اور کہا کہ سخت گیر مجرمین کو بھی اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ قانونی عہدیداروں نے کہا کہ 11 قحطیوں کا جرم قابل نفرت ہے، لیکن یہ شاذ و نادر زمرے میں نہیں آتے۔ سپریم کورٹ نے حکومت گجرات سے سخت سوالات کیے۔ ججز نے کہا کہ حکومت گجرات ایک باریک تار پر ہے۔ جہاں تک قحطیوں کی قبل از وقت رہائی کا معاملہ ہے، جسٹس BV ناگارتنا اور جسٹس اجول بھوان کی بینچ نے کہا کہ قحطیوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں 14 سال بعد انہیں رہا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیوں دیگر قیدیوں کو رہائی کی راحت نہیں دی گئی؟ کیوں ان قحطیوں کو امتیازی طور پر اس پالیسی کا فائدہ دیا گیا؟ عدالت نے سوال کیا کہ آخر کس بنیاد پر بلقیس بانو کیس کے قحطیوں کے لیے جیل مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی؟ چاند کو فتح کرنے کے لیے نکلے چندریان 3 نے اپنے مشن میں ایک اور انتہائی اہم سنگ میل عبور کیا، جس میں وکرم لینڈر ماڈیول کامیابی کے ساتھ پروپلشن ماڈیول سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنا اگلا سفر شروع کر دیا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن آسرو کے مطابق اب لینڈر روور کو لے کر اکیلے سفر کرے گا اور اسے 23 اگست کی شام چاند کے جنوبی قطب کی سطح پر اترنا ہے۔ اس کے لیے تمام مشقیں مکمل کر لی گئی ہے۔ آسرو کے مطابق اس مرحلے کے کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چندریان 3 کے تمام سسٹم اب تک ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔ چندریان 3 کو 14 جولائی کو شری ہری کوٹا آندھرا پردیش میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا گیا تھا۔ چاند کی سطح پر اترنے کے بعد روور لینڈر سے باہر نکلے گا اور مشن کا مقاصد کو مکمل کرے گا۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو ہندوستان یہ کارنامہ انجام دینے والا دنیا کا 4تھا ملک بن جائے گا۔ اب تک صرف امریکہ، روس اور چین نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ گیان واپی مسجد کی قانونی لڑائی میں پیش ایک ہندو تنظیم نے ایک کھلا مکتوب تحریر کیا اور تنازع کو بیرون عدالت تصفیے کی وکالت کی۔ یہ مکتوب ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب وارانسی کی ضلعی عدالت کے حکم پر گیان واپی مسجد کا سائنٹیفک سروے کیا جا رہا ہے۔ وشوا ویدک سناتن سنگھ کے سربراہ جتیندر سنگھ بائجن نے ایک کھلا مکتوب تحریر کیا ہے اور ہندو مسلم فریقوں کو مدعو کیا ہے تاکہ وہ بات چیت کے ذریعے باہمی رضامندی سے گیان واپی کمپلیکس تنازع کا تصفیہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکتوب اس کیس کی اصل مقدمہ باز راکھی سنگھ کی مرضی سے ہندو فریق کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کو باہمی رضامندی سے حل کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے بہتر بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جتیندر سنگھ نے اپنے مکتوب میں کہا کہ بعض غیر سماجی عناصر اپنے فائدے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اس دستوری لڑائی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو دونوں فریقوں اور ملک و سماج کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس تنازع کو باہمی مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کرتے ہوئے ایک نظیر قائم کریں۔ انتظامیہ مسجد کمیٹی کے جنرل سیکرٹری محمد یاسین نے کہا ہے کہ کمیٹی کو یہ مکتوب موصول ہوا ہے اور میٹنگ میں اس پر غور کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ جس طرح ایودھیا میں مندر کی تعمیر کے لیے کار سیوا کی گئی
इसी तरह प्रयागराज में एक अजीम शान श्रृंगारपुर धाम की तामीर के लिए भी कार सेवा की जानी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य के तबसरों की अहमियत इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक रियासती वजीर और निषाद पार्टी के सरबराह संजय निषाद ने यह दावा किया था कि प्रयागराज के खिला निषाद राज में वाक़ मस्जिद गैर कानूनी है। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया था कि वो बातचीत के जरिए इसका हल तलाश करें। ये कहते हुए उन्होंने एक नया तनाज़ा छेड़ दिया। पुलिस ने हरियाणा के पलवाल में 13 अगस्त को सरो हिंदू समाज की महापंचायत में इश्तिहारअंगेज तकरीर करने के इल्जाम में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सचिन की शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की गई है। सचिन ने इल्ज़ाम लगाया कि पोंडरी गांव में मुनक़िदा महापंचायत में कुछ लोगों ने अपनी तकरीरों में एक फ़िरक़े के खिलाफ इश्तिहारअंगेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। पुलिस ने बताया कि हातन पुलिस स्टेशन में IPC की दफ़ा 153A मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना और 505 फसाद फैलाने वाले बयानात के तहत FIR दर्ज की गई है। SHO मनोज कुमार ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और कसूरवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा गुज़िश्ता 2 दिन से सुर्खियों में छाया हुआ है क्योंकि इनके दौरे ने बीजेपी लीडरान को न सिर्फ बरहम कर दिया है बल्कि वो इस दौरे से इस कदर नाराज़ हो चुके हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार पर तनकीदें शुरू कर दी है। नीतीश कुमार का यह दौरा दिल्ली में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि के दौरे से शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने वाजपेयी की बरसी के मौके पर समाधि पर जाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया, जिस पर खुश होने के बजाय बिहार बीजेपी के तमाम लीडरान ने नीतीश पर तनकीदें शुरू कर दी है। दिल्ली से लौटने के बाद पटना हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया के क़याम ने ही NDA को मीटिंग पर मजबूर किया है। हमारे इत्तेहाद के बाद कम से कम NDA की मीटिंग तो शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म मोदी का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने कहा कि वो इंडिया के क़याम के बाद से बेहद परेशान हैं। उन्होंने बिहार बीजेपी लीडरों की तनकीदों का भी जवाब दिया और कहा कि ये लोग अपनी ही पार्टी में नाकारा होकर रह गए हैं, इसलिए अब इन्हें हर मामले में कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन इनके बयानात की कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस के साबिक़ लीडर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू मजहब इस्लाम से पुराना है और तमाम मुसलमान पहले हिंदू थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गुलाम नबी आज़ाद का वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले का है। गुलाम नबी आज़ाद 9 अगस्त को यहाँ तकरीर करने पहुँचे थे। वीडियो में आज़ादाना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस्लाम 1500 साल पहले पैदा हुआ था, हिंदुस्तान में कोई भी बाहर का नहीं है, हम सब इस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान असल में हिंदू थे जो बाद में तब्दील हो गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 600 साल पहले कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, फिर बहुत से लोग मजहब तब्दील करके मुसलमान हो गए। इस दौरान आज़ाद ने लोगों से भाईचारा, अमन और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की और कहा कि मजहब को सियासत के साथ नहीं मिलाना चाहिए, लोग मजहब के नाम पर वोट ना दें। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम बाहर से नहीं आए हैं, इसी मिट्टी के पैदावार हैं। CPIM लीडर बृंदा करत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई और एक दरख्वास्त में मुदाखलत की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि हरियाणा के बशमूल मुख्तलिफ रियासतों में मुनक़िदा रैलियों में मुसलमानों को हलाक करने और इनके समाजी व मुआशी बाइकॉट की अपीलें की जा रही है। हरियाणा में हाल ही में फ़िरक़ाना झड़पों में 6 अफराद हलाक हुए थे। CPIM लीडर और साबिक़ रुकन राज्यसभा बृंदा करत ने अदालत से इजाज़त तलब की कि इन्हें इस मसले पर सहाफ़ी शाहीन अब्दुल्ला की जानिब से दायर करदा ज़ेर-इल्तवा दरख्वास्त में फ़रीक बनने की इजाज़त दी जाए। बृंदा करत ने दिल्ली के गोंडा चौक और नेंगलोई के बशमूल बाज़ मुकामात पर मुनक़िदा जलसों में मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाने वाली तकारीर का हवाला दिया जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे मजहबी तंजीमों के कायदीन ने की। BRS सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वरंगल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। 10 लाख अफराद की शिरकत के साथ एक बड़ा जलसा मुनक़िद करने की तैयारियां कर रहे हैं और 90 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल करके रियासत में मुसलसिल तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने का दावा पेश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने जारिया साल के अवाखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर सारी तवज्जो मरकूज़ कर दी है। एक तरफ फलाही स्कीमात का ऐलान करके समाज के तमाम तबक़ात की तायीद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन को शिकस्त देने तमाम सियासी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को वरंगल में 10 लाख अफराद की शिरकत का जलसा मुनक़िद करके इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने का फैसला कर चुके हैं। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी में बेकायदगियाँ और धांधलियाँ उरूज पर है और इक़रबा परवरी से काबिलियत और अहलियत के बगैर तक़र्रुरात का सिलसिला जारी है। महकमा अक़लियती बहबूद के वज़ीर से लेकर ओहदेदारों तक हर कोई अक़ामती स्कूलों से फ़ायदा उठाने को अपना बुनियादी हक़ तस्वुर कर रहे हैं। यही वजह है कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तक़र्रुर करदा स्टाफ की अक्सरियत का ताल्लुक़ गैर अक़लियत से है। अक़ामती स्कूल सोसाइटी मामलात के तार
चीफ मिनिस्टर दफ्तर तक जुड़े हैं, जिसके नतीजे में किसी भी बेकायदगी पर कार्रवाई की तौक़े नहीं ली जा सकती। अकरबा परवरी का एक ताज़ा मामला मंजरेआम पर आया, जिसमें वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर के भतीजे को किसी काबिलियत के बगैर अकामती स्कूल का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अकामती स्कूल सोसाइटी ने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ओहदे से अलहदगी के 5 दिन बाद वज़ीर के भतीजे को स्कूल का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। प्रिंसिपल के ओहदे पर तकर्रुर के लिए उम्मीदवार का बीएड और एमएड डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है, लेकिन वज़ीर अखिलती बहबूद के भतीजे के श्रीधर को किसी काबिलियत के बगैर प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग तालीम याफ्ता श्रीधर को सोसाइटी में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया था। बाद में इन्हें चित्तूर में अकामती स्कूल का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। स्कूल मामलात में श्रीधर पर कई इल्ज़ामात मंजरेआम पर आए, जिसकी विजिलेंस तहकीकात की गई। स्कूल में तलबा की तादाद पर गलत रिपोर्ट पेश करने पर श्रीधर को खिदमत से अलहदा कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद ही वज़ीर अखिलती बहबूद के दबाव के तहत इन्हें रामाकंडम में अखिलती अकामती स्कूल का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। इस फैसले पर महकमा के ओहदेदारों ने हैरत का इजहार किया है। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तश्कील तेलंगाना से कबल जदोजहद तेलंगाना के दौरान और तश्कील तेलंगाना के बाद इंतखाबी मुहिम में ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना में इनकी पार्टी इख्तिदार हासिल करती है तो इब्तदाई 4 माह में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने कोई अहकाम जारी नहीं किए गए और ना मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए कोई ऑर्डिनेंस की इजराई अमल में आई, बल्कि अब मुस्लिम नुमाइंदों को असम्बली में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे में मौसर पैरवी पर हुकूमत को मुतवज्जे करना रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे में हुकूमत की अदम दिलचस्पी की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत से दलितों को तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए असम्बली में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल के साथ मंजूर हुआ था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के पास दोनों बिल ज़ेर इल्तवा है। लेकिन बीआरएस ने दलित तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और इजाफे के बाद अब जो तकर्रुरात किए जा रहे हैं इन पर अमल भी किया जाने लगा है, लेकिन मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत से कोई पेशरफ नहीं की गई और गुज़िश्ता इंतख़ाबात के दौरान केसीआर से इस मामले में रास्त इस्तिफ़सारात पर जवाब देने के बजाय डांट कर चुप करवाया गया था और कहा गया था कि हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा है। लेकिन अब जबकि तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर राव की जानिब से किया गया केसीआर का 4 माह का वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तलवार लटक रही है। तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद में मूसा नदी के किनारे आबाद अफराद की मुंतकली के लिए एक मनसूबा बनाया है। इन अफराद को 10,000 डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने अराकीन असेंबली अहदेदारों और दीगर के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इस बात का फैसला किया गया। हैदराबाद के अराकीन असेंबली ने हुकूमत के सामने तजवीज़ पेश की थी कि मूसा नदी से जुड़े हुए नशेबी इलाकों में रहने वालों की मुंतकली ज़रूरी है। सैलाब की रोकथाम और स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट की बेहतरी के लिए मूसा नदी को कब्ज़ों से पाक बनाना ज़रूरी है। के.टी. रामाराव ने कहा कि इन अफराद को फौरी मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अनकरीब SLDP मरहला 2 के कामों की मंजूरी भी दी जाएगी। इस इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर आबदाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव, रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के अलावा बीआरएस के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन असेंबली, GHMC कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर हैदराबाद और दीगर ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि नामुवाफिक और चैलेंज से भरपूर हालात में काम करने के दौरान अंदरूनी सलाहियतें उभरती है। डीजीपी अंजनी कुमार ने आज 38 पुलिस ओहदेदारों की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन ओहदेदारों को यौम आज़ादी के मौके पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल बराए बहादुरी, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल बराए मेरिट खिदमत हासिल हुए। इनमें से 5 ओहदेदारों को मरकज़ी वज़ीर दाखिला का मेडल तहक़ीक़ात में बेहतरीन कारकर्दगी पर हासिल हुआ। डीजीपी ने कहा कि महकमा पुलिस के लिए नामुवाफिक और चैलेंजेस से भरपूर हालात में काम करना ज़रूरी है। अंजनी कुमार ने कहा कि ग्रेहाउंड, स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस मुल्क भर में पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी में आगे रहते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों की तनसीब के इक़दामात पर रिपोर्ट दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। अदालत ने यह भी कहा कि कितने पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए और मजीद कितने पुलिस स्टेशनों में कैमरों की तनसीब की जानी है, इस बात से वाकिफ करवाया जाए। अदालत ने इस मौजू पर साबिक़ में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा रहनुमा खतूत पर कहाँ तक अमल आवरी की गई, इस पर भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। अदलिया ने हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में तहवील मौत से मुतालिक CCTV फुटेज हवाले करने की भी हिदायत दी। गोशा महल पुलिस ग्राउंड में हैदराबाद सिटी पुलिस ने जब्त शुदा और छोड़ी हुई कम व बेश 1641 गाड़ियों का अवामी हर्राज किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की निगरानी में 17वें मरहले का ये अवामी हर्राज अंजाम दिया गया।
اس ہراج کے دوران ایم سرینیواس جوائنٹ کمشنر پولیس CAR ہیڈ کوارٹرز نے بولی دہندوں جن میں اکثریت کا تعلق آٹو موبائل شعبے سے ہے ان سے خطاب کیا اور منصفانہ انداز میں بولی دینے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ ریاستوں سے تعلق رکھنے والے 550 بولی دہندوں نے شرکت کی اور 1641 گاڑیوں کا ہراج کیا گیا۔ حیدرآباد شہر کی 1598 گاڑیوں جن میں چھوڑی ہوئی بغیر کسی دعوے والی اسکریپ کی 1561 ٹو ویلرز، 25 3 ویلرز اور 12 4 ویلرز شامل تھے۔ ان کا 83 لاکھ روپے میں ہراج کیا گیا، جبکہ سڑک پر چلنے کے قابل 43 ٹو ویلرز کا ہراج 9,70,000 روپے میں کیا گیا۔ سابق ہندوستانی کرکٹر و سابق رکن پارلیمنٹ محمد اظہرالدین، جو کہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات میں حیدرآباد سیٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ کانگریس نے گزشتہ ماہ تلنگانہ کے لیے ایک 29 رکنی ریاستی انتخابی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کی ریاستی پارٹی صدر ریونت ریڈی اس کے چیئرپرسن تھے۔ ریاست میں اس سال کے آخر میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ پارٹی کے ایک بیان کے مطابق کانگریس صدر نے تلنگانہ 2023 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پردیش الیکشن کمیٹی کی تشکیل کی تجویز کو فوری طور پر منظوری دے دی ہے۔ میڈیا نے محمد اظہرالدین سے سوالات کیے، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ حیدرآباد سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں قیاس آراریاں تیز ہو گئی ہے۔ کیا محمد اظہرالدین اسمبلی الیکشن لڑیں گے یا پھر پارلیمنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا وہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی سے مقابلہ کریں گے؟ پہلے سے اتنا نہیں، میں حیدرآباد سے